Hello, welcome to our YouTube channel Tech Solution Point. This is a more important video for suppliers and buyers. Implemented of Rule 59.6 on GST portal, applicable from 1st September 2021. Implementation of Rule 59.6 on GST portal dated 26th August 2021. The Rule 59.6 of GST Rules Act 2017 inserted in the wide notification 1st 2021 dated in the 1st January 2021 provide for the restriction of the filing GSTR 1 criteria cases. First point, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods, services or both under section 37 in form GSTR 1 if he has not furnished the return in form GSTR 3B the preceding 2 months. It's saying that कि अगर आप 2 महीने तक अगर जीएसटी रिटर्न 3B की रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो अब आप जीएसटीआर 1 फाइल करने में भी सक्षम नहीं है और आपको पहले जीएसटीआर 3B की जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो आपको फाइल करनी होगी, देन आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे. सेकेंड पॉइंट, a registered person required to furnish return for every quarter under the provisions sub rule subsection 1 and section 39 shall not be allowed to furnish the details of outward supply or goods or services or both under section 37 in GSTR 1 using the invoice furnish the facility if has not furnished the GSTR 3B preceding tax period. वही बात फिर दोहराया गया है कि अगर आपकी क्वार्टरली रिटर्न भी है तो आप अगर प्रीवियस क्वार्टर के रिटर्न कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये GSTR 1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा. एक्चुअली कुछ सप्लायर यहाँ पे गलती करते हैं जो कि GSTR 1 फाइल कर देते हैं और 3B पेंडिंग हो जाता है जिससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता ऑन टाइम, क्योंकि वो हमारे GSTR 2A और 2B में तो रिफ्लेक्ट हो जाती है बट गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं मिलता. उसमें बायर को भी परेशानी होती है और सप्लायर को भी. बायर को फिर वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि हमें आपकी सप्लायर के द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है, टैक्स का पेमेंट नहीं आया है, इसलिए आपका हम ये पेमेंट अभी डिसअलाउ कर रहे हैं. Second, this rule they implemented in the GST portal 1st September 2021 on implementation of the said rule system will check that whether the before filing GSTR 1 tax period in the following has been filed or not. GSTR 3B previous 2 monthly tax period for 2 months. GSTR 3B in the previous quarterly. कोई सेम पॉइंट है कि आपको अब 2 महीने से अधिक का रिटर्न पेंडिंग आप नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज आप GSTR 1 भी फाइल नहीं कर सकते हैं और आपको ई-वे बिल फाइल में भी प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए आप ऑन टाइम और बिफोर ड्यू डेट अपने रिटर्न सबमिट करें जिससे कि सप्लायर को भी परेशानी नहीं होगी और बायर को भी परेशानी नहीं होगी. तीसरा है, the check will the operate clicking the submit button GSTR 1 and the system will given the error message if the condition to the rule 59.6 not met, and it may be the noted that record have been the saved GSTR 1 will the remain save and the filing such records will the permitted after rule 59.6 is compiled with. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप GSTR 3B फाइल कर देते हैं देन उसके बाद भी अगर आप सबमिट GSTR 1 करते हैं तो आपको एक एरर मिलता है कि आप इस रूल के थ्रू आप पहले प्रीवियस रिटर्न को फाइल करें. इसमें एक ऑप्शन मिलता है
बात करते हैं रूल नंबर 4, implementation rule 59.6, the GST portal will the completely automated, similar the blocking and unblocking of e-way bills as per rule 130E, and the facility for the filing GSTR1 will be restored immediately after filing the relevant GSTR3V. No separate approval would be the needed from the tax officer to restore facility of the filing GSTR1. सबसे मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप GSTR1 3 भी फाइल कर देते हैं, देन फिर आप GSTR1 फाइल करते हैं, तो एक आपको एरर देगा कि आपका ये फैसिलिटी ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं एज लाइक GSTR ई-वे बिल में भी ये प्रॉब्लम आती थी। जब आप प्रीवियस 2 मंथ्स की रिटर्न पेंडिंग रखते हैं तो आपका ई-वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक हो जाता है। देन फिर आप उसको सेल्फ से ही आप उसको अनब्लॉक करते हैं वेबसाइट के थ्रू। आपको किसी ऑफिसर या डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं। ये ऑटोमेटेड फैसिलिटी है, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। आप उसको खुद से ऑपरेट कर सकते हैं और उसको फिर अनब्लॉक करके देन फिर आप अपनी GSTR1 की कंप्लीट फाइल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टू एंश्योर नो disruption, the GSTR1 taxpayer who have not filed the pending GSTR3B, especially from the period November 2020 and the afterwards, and the so that the earliest. कुछ लोग की काफ़ी पेंडेंसी रिटर्न है जो अपनी रिटर्न ऑन टाइम फाइल करें, जिससे कि सप्लायर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बायर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज नोट दैट online classes is also available on this platform through online classes. So please, if you are interested, please contact me. अब नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे कि GSTR2B वर्सेस GSTR2A वर्सेस GSTR3B रिकन्सिलेशन हम कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। थैंक यू।